Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, I welcome you all to computer class 3. In the previous video, we were doing chapter 5, that is fun with paint. Children, we were doing chapter 5 of our computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, Computer Series 3. So children, as we normally do, firstly we will revise what we had done in the previous video and then we will move further into the chapter. So children, in the previous video, we were doing chapter 5, that is fun with paint, and we were reading about different types of tools which we use while doing drawing or coloring in MS Paint. So let us revise these and then move further into the chapter. So children, we were studying about tools in Paint. So these are the tools which we have in the Paint program. So before moving ahead, let us revise a little about what you have learnt so far. So children, so far we have learnt about different types of tool. As you can see here in the picture, firstly we have pencil tool, the most important and the first tool which we use while drawing and painting is the pencil tool. So this is children, as you can see here in the picture, this is the picture of pencil tool where you can see the picture of pencil, and with this picture only you can identify the picture where the icon or the picture where a pencil is drawn is called pencil tool. You can draw straight line, wavy, curved lines with pencil tool. आप pencil tool को choose करके straight line भी draw कर सकते हो, wavy line भी draw कर सकते हो, curved lines भी draw कर सकते हो. Then children, second tool is eraser tool. As we use pencil while drawing on paper, here also we use pencil tool for drawing straight line, wavy line, curved line, whatever line we need to draw, we use this pencil tool. Then if you are drawing something or if you are writing something, if you are using pencil, you will need eraser also. As the name indicate, eraser का मतलब होता है something which is used to for rubbing anything on the paint area या ड्राइंग एरिया. जो हमारे पेंट प्रोग्राम का ड्राइंग एरिया होता है, उसमें अगर हमें कुछ लिख करके या ड्रॉ करके इरेज करना होता है, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो गलती होती है, जैसे हम पेपर में भी ड्रॉ करते हैं तो गलती करते हैं, तो हम यहाँ पे इरेजर टूल से उस चीज़ को इरेज कर सकते हैं. सो यू कैन रब द ड्राइंग बाय यूजिंग इरेजर टूल. पेंसिल टूल का मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, इरेजर टूल का मतलब है रब कर सकते हैं. Then we have next tool. This tool is brush tool. As we know children, brush tool is used to draw freehand lines of different styles. Brush tool का मतलब होता है कि it is used to draw freehand lines of different style. अगर अपने फ्री हैंड से जैसे हम ड्राइंग करते हैं वैसे हम ब्रश चूज करके अलग अलग स्टाइल की लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे ब्रश से हम थिकनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रश का, पेंसिल टूल का भी थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग स्टाइल में लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं विथ फ्री हैंड. नाउ नेक्स्ट इज लाइन टूल. लाइन टूल जैसा कि नाम है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ डिफरेंट थिकनेस. अब एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी हम थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग थिकनेस की कर्व लाइन, वेवी लाइन यू बना सकते हैं. उसी तरह ब्रश में भी हम अलग अलग टाइप, बहुत अलग अलग तरह के ब्रशेज़ होते हैं, अलग अलग स्टाइल के से लाइंस ड्रॉ हो सकती है और उसकी थिकनेस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हम अलग अलग थिकनेस की अलग अलग ड्राइंग बना सकते हैं. उसके बाद हमारे पास लाइन टूल है. लाइन टूल का मतलब होता है लाइन ड्रॉ करना. यू कैन ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस विथ लाइन टूल. आप लाइन टूल से अलग अलग थिकनेस की लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ पे लाइन टूल, यू कैन ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस विथ लाइन टूल. लाइन टूल से अलग अलग थिकनेस की लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो. सिमिलरली उसके बाद आप है रेक्टेंगल टूल. अब रेक्टेंगल टूल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल
एक शेप बनाना, क्लोज्ड शेप, जिसके दो साइड्स एक बराबर होती हैं और दूसरी दो साइड एक बराबर होते हैं, यानी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। सो 4 साइड्स होते हैं और जो मेजरमेंट होती है 2 होती है। आमने सामने की लाइंस एक जैसी होती है और ये जो शेप हमें ड्रॉ करना है वो हम रेक्टेंगल टूल से बनाते हैं, क्योंकि ऐसे शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब रेक्टेंगल का से हम रेक्टेंगल टूल से, नाम से ही हमें पता चलता है कि हम इसे ना सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि हम कोई भी क्लोज्ड फिगर, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर है, हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज रेक्टेंगल टूल। उसके बाद हमारे पास है ओवल टूल। अब जैसे कि रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन, यूजिंग दिस ओवल टूल वी कैन ड्रॉ सर्कल एज वेल एज ओवल शेप। ओवल शेप अंडाकार और सर्कल यानी गोल, तो हम इन दोनों शेप्स को ओवल शेप से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कहीं भी हमें ओवल शेप की या सर्कल की ज़रूरत होती है तो वी यूज़ ओवल शेप। तो यू कैन ड्रॉ सर्कल्स एंड ओवल शेप्स बाय यूजिंग ओवल टूल। नाउ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अब राउंडेड रेक्टेंगल टूल तो समझ में आया कि राउंड रेक्टेंगल है, लेकिन यू कैन सी चिल्ड्रन द साइड्स या कॉर्नर जो होते हैं इस रेक्टेंगल का राउंड है, गोल शेप में है, इसलिए इसको हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल कहते हैं। अब ये रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन उसके जो वर्टिसेस होते हैं यानी कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होता है। तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल से हम राउंडेड कॉर्नर के साइड्स के टूल्स को ड्रॉ, मतलब राउंडेड जो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका जो कॉर्नर्स है वो राउंड होता है, इसलिए हम इसको राउंडेड रेक्टेंगल टूल कहते हैं। अब नेक्स्ट इज पॉलीगन टूल। जो नेक्स्ट वाला है ये है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल का मतलब होता है एनी क्लोज्ड फिगर with any number of side. You can draw a triangle or other shapes with this tool. आप ट्राइंगल भी बना सकते हो और ऐसे कोई भी क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं। ना तो वो चार, जैसे कि रेक्टेंगल में 4 होता है, स्क्वायर में 4 होता है, लेकिन उसके बाद के जितने भी फिगर्स बनाने हो जिसमें 4 से ज़्यादा साइड हो या 4 से कम साइड हो, हम वहाँ पे पॉलीगन टूल को यूज़ करके वो शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी शेप ऐसा जिसमें 4 भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है, 4 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक क्लोज्ड फिगर होगा, उस फिगर को हम पॉलीगन टूल को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीगन टूल। नेक्स्ट टूल इज़ कर्व टूल। अब कर्व टूल का मतलब होता है यानी कर्व लाइन बनाना। तो यू कैन ड्रॉ कर्व्स विथ दिस टूल। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ कर्व, आप कर्व टूल यूज़ करोगे। एंड ए यानी टेक्स्ट टूल। If you want, you can write in paint with the help of text tool. अगर आपको पेंट में, सपोज आप ड्राइंग बना रहे हो, ड्राइंग में आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो देयर यू कैन यूज़ दिस टूल फॉर राइटिंग टेक्स्ट। आपको कुछ लिखना है, आपको अपनी ड्राइंग में को लेबल करना है, आपको अपनी पूरी ड्राइंग को एक नाम देना है। सपोज आपने सीनरी ड्रॉ की है, आप सीनरी को भी नाम देना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। तो टेक्स्ट टूल मतलब कुछ भी लिखना है अगर ड्राइंग एरिया में, तो वहाँ पे हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं। देन एक बार फिर हम इसे रिवाइज करते हैं चिल्ड्रन। हियर वी हैव डिफरेंट टूल्स प्रेजेंट इन द पेंट प्रोग्राम। एज यू नो चिल्ड्रन, यूजिंग दीज टूल्स यू कैन ड्रॉ एनी फिगर इन द ड्राइंग एरिया यूजिंग द पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम को यूज़ करके ड्राइंग एरिया में अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो वहाँ पे आप इन सारे टूल्स को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दीज टूल्स आर फाउंड इन द टूल बॉक्स। एज वी नो देयर आर टू बॉक्सेस प्रेजेंट इन द पेंट प्रोग्राम। वन इज़ कॉल्ड कलर पैलेट एंड द अदर वन इज़ टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स पे जो टूल्स होते हैं, सम ऑफ द टूल्स वी आर गोइंग टू रीड हियर। अबाउट सम ऑफ द टूल्स वी आर गोइंग टू रीड हियर। फर्स्ट वन इज़ पेंसिल टूल। एज यू नो, pencil is used for drawing any kind of line or the figure. So using the pencil tool you can draw any kind of line. Straight line भी आप draw कर सकते हो। Straight line का मतलब क्या है? Straight या line यानी सीधी line। अब उसके बाद आप wavy line भी बना सकते हो, इस तरह की line भी draw कर सकते हो, और you can also draw कर्व लाइन। आप इस तरह की लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो विद द पेंसिल टूल। नाउ सेकेंड वन,
सेकेंड इज इरेजर टूल। अब आपने कुछ ड्रॉ किया है तो आपको मिटाने की भी ज़रूरत होगी, देयर यू कैन यूज़ इरेजर टूल। आप वहाँ पे इरेजर टूल का, इरेजर का मतलब चिल्ड्रन, इरेजर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर रबिंग, वो चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे इरेजर टूल को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग को मिटा सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है ब्रश टूल। अब ब्रश टूल जो होता है, ब्रश टूल का मतलब होता है एक ब्रश जिससे आप अलग अलग स्टाइल में ड्राइंग बना सकते हो या लाइन बना सकते हो। और आपने देखा होगा ब्रश टूल में बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रश होते हैं। किसी में आपका ब्लैक मोटी सी सा लाइन बनता है, किसी में डॉटेड लाइन बनता है। तो अलग अलग स्टाइल में आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। और इस ब्रश का भी आप थिकनेस यूज़ कर सकते हो। आप पेंसिल की थिकनेस ले सकते हो, आप ब्रश की थिकनेस ले सकते हो। तो आप थिकनेस भी इसका सेट कर सकते हो, जितनी मोटी या पतली आपको लाइन चाहिए आप उस हिसाब से थिकनेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चिल्ड्रन नेक्स्ट वन इज़ लाइन टूल। अब लाइन का मतलब ही लाइन होता है, आप लाइन टूल से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज़ लाइन टूल। रेक्टेंगल टूल, आप सभी को पता है रेक्टेंगल इज़ अ शेप। आपका पेंसिल बॉक्स रेक्टेंगल शेप का होता है, आपका ये बुक रेक्टेंगल शेप की होती है। लेकिन रेक्टेंगल टूल से हम सिर्फ रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, बल्कि हम स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा शेप जिसके दो अलग अलग साइड्स होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, या फिर चारों साइड्स एक बराबर होते हैं, तो आप दोनों शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। सो रेक्टेंगल से हम स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ओवल शेप। जैसा कि नाम है ओवल यानी अंडाकार। ओवल शेप से ना सिर्फ आप ओवल बना सकते हो, शेप बना सकते हो, बल्कि आप सर्कल भी बना सकते हो, यानी कि गोल शेप भी बना सकते हो। तो यू कैन ड्रॉ आइदर सर्कल और ओवल शेप। तो यहाँ पे ओवल टूल इज यूज फॉर ड्राइंग सर्कल और ओवल शेप। राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल का मतलब होता है वो रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, कॉर्नर पॉइंटेड ना होकर के वो राउंड हो सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो वर्टिसेस हैं ये गोल हैं और ये कोने मतलब कॉर्नर्स इसके जो हैं वो राउंड हैं। तो आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल से राउंडेड शेप का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। देन वी हैव पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल का मतलब होता है वो शेप जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं, यानी कि 3 साइड या वाला ट्राइंगल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और 3-4 से अधिक साइड्स वाला शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो शेप जो क्लोज्ड है लेकिन उसमें साइड्स बहुत सारी हैं, तो कितनी भी साइड्स वाले फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज पॉलीगन टूल। पॉली मतलब मेनी, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी साइड्स वाले शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो। देन कर्व का मतलब भी कुछ ऐसा होता है, कर्व भी ड्रॉ करना है तो आप कर्व टूल यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ड्राइंग एरिया में कुछ लिखना है, लिखने का मतलब टेक्स्ट होता है, तो आपको कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, यू कैन यूज़ टेक्स्ट टूल। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड टूल्स while drawing and coloring, while drawing, not coloring, while drawing. So this is all about the different tools. There are many more tools present in the paint program. So these are some of the commonly used tools about which we have studied just now. अब our next topic is using selection area. अब selection area के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so next topic is children using selection option. यूजिंग सेलेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, एंड व्हाट इज़ दिस सेलेक्ट ऑप्शन, होता क्या है ये सेलेक्ट ऑप्शन। अब चिल्ड्रन सेलेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आप यहाँ पे ये है यूजिंग सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट का मतलब होता है किसी एरिया को सेलेक्ट करना, पार्ट ऑफ ड्राइंग को सेलेक्ट करना। सो दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ पार्ट और होल ड्राइंग। यहाँ पे आप ड्राइंग के एक पार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करते हैं। उस केस में हम सेलेक्ट करते हैं जब उसे हमें मूव करना हो, इरेज करना हो। आपको किसी भी ड्राइंग के पार्ट को इरेज करना है तो भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह उठा के करना है तो भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी ड्राइंग आप सेलेक्ट करो, पूरी ड्राइंग भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसका एक पार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस केस में हम कैसे सेलेक्शन करेंगे? सो फर्स्टली लेट अस नो। सो हियर दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ पार्ट और होल ड्राइंग। अ पार्ट यानी ड्राइंग का एक भाग,
यानी कि पूरी की पूरी ड्राइंग को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर सेलेक्टिंग द ड्राइंग को सेलेक्ट करने के बाद यू कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हो। इन पेंट विंडो में ही आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। अब ये करोगे कैसे आप, लेट अस सी। चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सो हियर चिल्ड्रन, दिस इज़ योर पेंट विंडो। आपको पेंट विंडो दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा हम इसको बड़ा करते हैं। अब पेंट विंडो में चिल्ड्रन सबसे पहले यू कैन सी हियर क्लिक ऑन होम टैब। मैंने आपको बताया था ये होम टैब आपका है। दिस इज़ योर होम टैब। So children, this is home tab. This one is home tab, as you can see here. एक मिनट। This one is home tab. ये आपका home tab है। So सबसे पहले you will click on home tab. Click on home tab. As you know, here we have home tab and home tab के बगल में view होता है। That I have already told you. तो home tab पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन डाउन सेलेक्ट। ये बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स येलो कलर का, इसको हम सेलेक्ट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट दिया है। सेलेक्ट के नीचे कुछ ऐसा डाउन एरो की है। जब हम डाउन एरो की पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन खुलने के बाद हमारे पास दो चॉइस होता है। एक तो हमारे पास चॉइस होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास होता है फ्री सिलेक्शन। फ्री सिलेक्शन में आपका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। आपको फ्री शेप कोई किसी भी शेप में आप किसी भी ड्राइंग के पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ इस तरह का सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और रेक्टेंगल चूज़ करोगे तो आपको रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। उसके बाद क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट बटन। आप वहाँ पे अपने होल्ड करोगे, ड्रैग करके उस पूरी एरिया को, देखो यहाँ पे पूरी एरिया को यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट किया है ना, ये जो रेक्टेंगल शेप में पूरी एरिया को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसी तरह से ये एरिया आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद रिलीज़ करोगे। व्हेन यू रिलीज़ द माउस, क्या होगा, आप वहाँ पे माउस को रिलीज़ करोगे। फिर द डॉटेड रेक्टेंगल शोज दैट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप उसको पहले दबा करके यहाँ पे ला करके सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग द माउस डायगनली टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे माउस के बटन को ड्रैग करके नीचे लेके आओगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करके जब इसको छोड़ोगे तो आपका ये जो पूरा फिगर है ये डॉटेड लाइन से कि उसके सराउंडिंग में एक डॉटेड लाइन बन जाएगा। दैट मीन्स योर फिगर इज़ सेलेक्टेड। अब वहाँ पे आपका जो फिगर है वो सेलेक्ट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या करना चाहते हो। अगर आपको ये पूरी एरिया को डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो। अगर इस पूरी एरिया को मूव करना है तो आप इजीली इसको मूव भी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द होल और एनी ऑफ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। मतलब आप किसी एक पार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो और पूरी ड्राइंग को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप उसको मूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट यू वांट टू डू विद दैट सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि यह फर्स्टली यू विल चूज़ द होम, यू विल क्लिक ऑन द होम टैब, you will click on the home tab, then you will click on selection। आप selection पे क्लिक करोगे। उसके बाद selection पे क्लिक करने के बाद आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे which is just below the select box। then you will have some options। you will have this another box। here we have some options। under that one of the option is rectangular selection box। वहाँ से you will select rectangular selection and then you will come to this area। from here you will click and hold the left mouse button और diagonally जब हम इस बटन को इस तरह से पुल करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे ये आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बन जाएगा।
और ये पूरी आपकी डॉटेड लाइन बन जाएगी विच शोज़ कि आपका ड्राइंग जो है वो सेलेक्ट हुआ है। तो यू कैन सेलेक्ट पार्ट ऑफ अ ड्राइंग और अ होल ड्राइंग, आप पूरी ड्राइंग को भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रिलीज द कंप्लीट ड्राइंग विल बी सेलेक्टेड or part of the drawing which you have selected will be selected, and in this way you can move the drawing, or you can, if you want to delete, you can delete them, the drawing. So this is how you can select any drawing which is displayed on your screen. So this is how you are going to select any drawing. तो ये selection option था. So today we have studied about different tools and the selection box. So children, please go through the chapter, revise what we did today. We will meet once again in our next video. Till then, thank you and have a nice day ahead.